So hello everyone and welcome back to Competitive Willpower. We'll start an editorial over here, but before that I'd like to say one thing that if you feel like the video speed is slow, then you can increase it to 1.5x, okay, as per your need. So let me begin with the heading. Okay, so today's heading is Silkera learning. Subheading is Right lessons need to be learned from tunnel mishap. So it's related to a tunnel, okay? Silkera tunnel, where it's located in UK, that's Uttarakhand, right? So you can see over here a tunnel, and whatever happened over there, it was really uh, something to worry, okay? But somehow they have succeeded, okay, in rescuing the workers. So we'll go through with the editorial. Let me begin from here. Okay. The nation heaved a sigh of relief on Tuesday night when 41 rescued workers emerged safely from the Silkera Barakot tunnel in Uttarakhand. Okay, after being trapped for 17 days. So they were in a tunnel for 17 days. That's a really good number, and means a long day. बहुत दिन तक थे. And the nation heaved means over here I'll just say the vocab. Heaved पहले तो एक verb है and इसका meaning है lift और haul. तो नेशन ने क्या किया, उठाया, एक तरह से बोला जा रहा है heaved a sigh of relief, एक रिलीव की बात किया जा रहा जो उनको मिला, ठीक है, ऑन ट्यूसडे नाइट जब 41 वर्कर्स जो थे वो रेस्क्यू किए गए और सेफली बैरकोट से बाहर लाए गए जो 17 दिन से फंसे थे. It was harrowing time not just for these workers and their families but also for the crew of rescue workers, engineers, officials and political leadership involved in the rescue process. So it was harrowing. Harrowing एक word है, ये एक adjective है and its meaning is distressing. Okay, distressing मतलब डरावना. So harrowing एक था. It was harrowing. ये जो ट्रैप थे 41 वर्कर्स टनल में, so it wasn't good for their family but also for other people who were involved in this rescue process. जो वर्कर्स थे, इंजीनियर्स थे, ऑफिशियल्स थे, इवन political leaders, they were also stressed. Okay, now finally the humble rat hole mining technique बोला गया है. मीन्स द वे एक रैट अपना जो होल है, ठीक है, जो घर बनाता है एक मिट्टी में आस्ते आस्ते धीमे धीमे उसको ये करके, तो वो टेक्निक यहाँ पे यूज किया गया था. तो यहाँ पे बोला गया द फाइनली द रैट होल माइनिंग टेक्निक विच एज द टर्म सजेस्ट इंटेल्स rodent like digging with the use of simple tool. तो यहाँ पे सिंपल टूल यूज करके ये प्रोसेस आस्ते आस्ते धीमे धीमे करके यहाँ पे सबको बाहर निकाला गया. ओके, एंड a hazardous method used to mine coal now banned. जो hazardous method था, जो hazardous मतलब एक तरह से जो सही नहीं है, ओके, जो खतरनाक हो सकता है कोल माइन में, जो अभी बैन कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उससे लोगों को खतरा भी हो सकता था. वर्कर्स जो वहाँ पे फंसे थे वो बैन कर दिया गया, तो वो नहीं यूज किया गया. तो सिंपल जो टेक्निक है वो यूज किया गया. एंड मैनेज टू कट थ्रू द ऑब्स्टिनेट लम्स ऑफ आयरन इन द डिब्रिस एंड कर्व्ड आउट अ पैसेज फॉर द एग्जिट ऑफ द वर्कर्स. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मैनेज किया गया कट थ्रू द ऑब्स्टिनेट लम्स ऑफ आयरन. तो आयरन का यहाँ पे यूज किया गया है. और डेब्रिस एक नाउन है,
दिस वर्ड इज अ नाउन एंड यहाँ पे इसका मतलब है बचा हुआ जो पोर्शन, ठीक है। आयरन का मतलब आयरन में जो बचा हुआ पोर्शन है उसको यहाँ पे कट करके, कट थ्रू द डेब्रिस, बचा हुआ जो पोर्शन है उसको मैनेज किया गया कट करने में, और उसके बाद में कर्व्ड आउट, कर्व्ड आउट मतलब आउट मतलब बाहर निकल गया, कर्व्ड आउट द वर्कर्स, ओके। एक पैसेज बना गया यहाँ पे उनके एग्जिट के लिए, ठीक है। नाउ द ड्रिलिंग मशीन्स couldn't break past, let me erase this one, yeah, the drilling machine जो यूज किया गया couldn't break past tangled metal that had fallen into the tunnel, तो टनल में जो गिर गया था एक मेटल, ठीक है, उसको ड्रिलिंग मशीन ब्रेक करने में, तोड़ने में फेल रहा, सफल नहीं रहा था। into the tunnel along with the soft debris about 270 meter away from the सिलकेरा साइड। तो ये 270 मीटर की दूरी में सिलकेरा साइड से यहाँ पे एक टनल, जहाँ पे सब क्यों फंसे थे उसका कारण ये था कि एक जो मेटल जो गिरा था और along with the debris, soft debris, वो उसके वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था, तो they were got stuck. Now the rescue brings to the fore India's skills in pulling off nail beating rescue operation। तो ये क्या हुआ, rescue brings to the fore India skill in full pulling of nail beating rescue operation। nail beating means एक तरह से स्ट्रेस, एंजाइटी और चिंता एक बना रहता है, जिस तरह से जब चिंता होता है, स्ट्रेस में कोई होता है तो अपना नाखून चबाने लगता है, काटने लगता है, तो वहाँ पे ये ऐसा सिचुएशन हो गया था। एवरीवेयर वेर वेटिंग फॉर इट, ओके, कि कब सब बाहर होंगे, तो नेल बीटिंग एक रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया था। इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट्स और नेचुरल कैलेमिटीज वेयर पीपल एंड अप बीइंग स्ट्रैंडेड फॉर डेज। और ऐसा एक्सीडेंट यहाँ पे बोला गया कि यूके उत्तराखंड एक ऐसा ये है हिल स्टेशन जहाँ पे एक्सीडेंट और कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज, ओके, बर्फबारी या फिर बाढ़ आए दिन दिखा जाता है। उसमें जो लोग हैं वो स्ट्रैंडेड फॉर डेज, बहुत दिनों तक वो फंसे रहते हैं। नाउ द कलेक्टिव रेस्क्यू एफर्ट्स इन्वॉल्विंग अ रेंज ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, दैट इज अब ये रेस्क्यू एफर्ट में क्या कौन कौन इन्वॉल्व था, इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थे बिसाइड द पीएमओ, ओके, पीएमओ भी, फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टू द रेलवेज, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट भी और रेलवेज भी इसमें अपना सहयोग जो बन सके वो दे रहे थे। तो ये सब इन्वॉल्व थे इस रेस्क्यू में, ओके, ऐसा बता गया। The armed forces, paramilitary forces, state governments and district officials, disaster management experts at the center and the state, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। स्टेट गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हो, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, आर्म फोर्सेज, ऑल वेर अ पार्ट ऑफ दिस रेस्क्यू, ठीक है। एंड हेल्थ पर्सनल एंड ऑर्डिनरी पीपल भी इसमें शामिल थे, ठीक है। नाउ was commendable as an exercise in coordinated decision making and execution। तो ये जो commendable है, एक तो सराहना है, ये जो रेस्क्यू हुआ है, इतने सब पीपल यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हेल्थ पर्सनल एंड ऑर्डिनरी पीपल, सब एक साथ जुट के जो ये रेस्क्यू किए हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग जो था और उसको कोऑर्डिनेट करके जो रेस्क्यू किया गया वो कमेंडेबल है, सराहना है, ओके। नाउ दीज आर नॉट क्वालिटीज एसोसिएटेड विथ अ गवर्नमेंट सेटअप। अब ये जो है, दीज आर नॉट क्वालिटीज, ये जो क्वालिटीज, किस क्वालिटीज का बात किया रहा, पीछे से पीछे पैरा से लिंक करते हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग, ओके, और उसको कोऑर्डिनेट करके, ये क्वालिटीज जो है जो गवर्नमेंट सेटअप नहीं कर सकता है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। एसोसिएटेड विद इज क्वालिटीज, दीज आर नॉट क्वालिटीज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट सेटअप, तो ये गवर्नमेंट सेटअप द्वारा नहीं होता। हाउएवर द बेन ऑफ दिस कंट्री इज दैट इट एक्ट्स आफ्टर अ कैटास्ट्रोफ इंस्टेड ऑफ हैविंग प्रिवेंटिव सिस्टम इन प्लेस। हाउएवर द बेन, बेन का मतलब यहाँ पे क्या है, एक ये नाउन है, ये बेन इज अ नाउन, ओके,
एंड इट्स मीन दैट अ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, जो दुख का जो बड़ा बड़ा कारण होता है वो क्या है, हाउएवर वर्ड यूज किया गया, हाउएवर मीन्स हालांकि, द बेन ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री में जो एक एनॉयंस बना रहता है, डिस्ट्रेस बना रहता है, उसका कारण ये है, इज दैट द फैक्ट ओवर हियर is the fact after a catastrophe instead of having preventive system in place। तो प्रिवेंटिव सिस्टम जो जगह पे, ऐसा जगह पे, माइनिंग वाला एरिया पे जो चीज़ रहना चाहिए जिससे कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि माइंस में लोग फंस गए हैं, तो एक प्रिवेंटिंग सिस्टम होना चाहिए इसको रेस्क्यू के लिए। तो ये दुख का कारण है, बेन एक डिस्ट्रेस का कारण है कि कंट्री में ऐसा कैटास्ट्रॉफ ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं किया गया है। ओके, एक्सीडेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ नेग्लिजेंस ऑकर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो आउट ऑफ नेग्लिजेंस मतलब अनदेखा करने पे जो छोटे छोटे चीज़ हैं उसको नेग्लेक्ट करने के कारण टाइम टू टाइम ऐसा सिचुएशन और एक्सीडेंट्स होता है। ओके, ऑकर होता है। ड्यू प्रोसेस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम ऑकर होता है एक्सीडेंट, एंड जो ड्यू प्रोसेस है उसको, ड्यू प्रोसेस मतलब रेस्क्यू करने में जो प्रोसेस है, इज ऑब्जर्व्ड इन अ एक्सिक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब उसमें जो प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट करने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए फिर उसको एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। सो अगर रेस्क्यू के लिए एक सिस्टम ऐसा अगर बनाया हो, यहाँ पे लिंक अगर हम लोग करें पिछला लाइन से, तो ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। सो बट ऐसा दुख का कारण है कि ऐसा सिस्टम नहीं है, प्रिवेंटिव सिस्टम इन प्लेस इट्स नहीं है। ओके, नाउ द लेटर in turn persist because mishaps are not investigated thoroughly। ओके, अब यहाँ पे बाद में का बात किया जा रहा है, द लेटर इन टर्न मिसहैप्स जो है, जो गलती हुआ, persist because of mishap जो गलती हुआ, are not investigated जो जिस कारण से ये टनल में सभी फंस गए, ओके, वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन थॉरली नहीं हुआ है। जो रीज़न था इसके पीछे, एक्सीडेंट का पीछे, वो अभी तक थॉरली इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। विद द culpable being brought to book and processes accordingly reviewed। and यहाँ पे ऐसा बोला, with the culpable being brought to book and processes accordingly reviewed। तो ऐसा करना चाहिए, ब्रॉट यूज़ किया गया है कि सब जो अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको एक तरीके से व्यू करना चाहिए अकॉर्डिंगली। तो प्रोसेस जो था शुरू में, क्या क्या जो स्टेप था जिसको नहीं फॉलो किया गया और ये एक्सीडेंट्स हुआ, ओके, द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड दिस एक्सीडेंट नीड टू बी रिव्यूड। क्यों ऐसा क्या हुआ और क्या गलती यहाँ पे थी वर्कर्स की, कि टनल अथॉरिटी की, then that need to be viewed। It is to be hoped that an inquiry into the Silkara Barricade tunnel collapse uncovers all aspects। and over here it's saying that एक इंक्वायरी, ऐसा होप किया जा रहा है, इट इज़ टू बी होप्ड, ऐसा किया जा रहा है कि एक इंक्वायरी सिलकारा बैरकेड टनल में किया जाए, जिससे जो ये कोलैप्स हुआ है उसका जो ऑल एस्पेक्ट्स है, सभी एस्पेक्ट्स को देते हुए कोलैप्स क्यों हुआ वो पता लगाया जा सके, एक इंक्वायरी होना चाहिए। नाउ द जुडिशियल प्रोब माइट हेल्प टू एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी। एंड जुडिशियल जो है, कानूनी तरीके से, एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी, माइट हेल्प टू एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी, एक बैलेंस बनाए रखे जुडिशियली। अगर एक ऑर्डर आ जाए तो सही तरीके से इसको आगे इंक्वायरी एंड इसका मेन कारण जो है पता लगाने में जल्दी होगा। अकाउंटेबिलिटी मतलब इस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी, और अच्छे तरीके से स्मूथली ये इंक्वायरी एंड अथॉरिटी पता लगा पाएगी। ओके, नाउ गोइंग बाय द अकाउंट्स ऑफ सम जियोलॉजिस्ट्स एंड इंजीनियर्स,
गोइंग, अब जियोलॉजिकल और इंजीनियर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। गोइंग बाय अकाउंट्स, जो उनका अकाउंट्स, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स। देयर हैव बीन lapses in the execution of the 4.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल प्रोजेक्ट। तो देयर, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल जो है उसमें एक्सिक्यूशन, बचाने में, सबको बाहर निकालने में जो लैप्सेस आए, क्या क्या कमी था। देयर हैज़ बीन लैप्सेस मतलब कमी जो रह गई, उसको देखना होगा बाय द पॉइंट ऑफ व्यू, बाय द अकाउंट ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा कि ये 4.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल जो है उसमें एक्सिक्यूशन में, बचाने में क्या कमी रही जो इतना देर हो गया। 17 डेज से वो सभी वर्कर्स स्टक थे, तो इतना क्या टाइम लग गया। ओके, नाउ देयर हैव बीन लैप्सेस इन द एक्सिक्यूशन, तो ये हो गया। रिपोर्ट्स ऑफ द वर्क ऑफ excavation and lining from the Silkera side having been subcontracted need to be probed. Okay, now the report of the excavation and मतलब बचाने में जो समय लगा, जो काम लगा, वर्क एंड लाइनिंग फ्रॉम द स्केलेरा हैविंग बीन सब कॉन्ट्रैक्टेड नीड टू बी प्रूव। ये सब कॉन्ट्रैक्टेड था, ठीक है, इस सिल्केरा साइड। ओके, हैविंग नीड टू बी प्रूव्ड मतलब एक तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें क्या काम चल रहा था, एंड उसका लाइनिंग एंड ऑल द थिंग्स नीड टू बी टेकन इन केयर, सो दैट जो एग्जैक्ट कॉज एंड प्रोज था, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टेड था, उसको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्या कारण था। तो ओवरऑल इस पूरे एडिटोरियल में यही बता रहा है कि जो मेन फेलियर था, कारण था, या फिर लंबा टाइम लगा, उसको आपको पता लगाना चाहिए, या फिर तो इंक्वायरी से, या फिर तो किसी भी प्रूफ से, ओके, जांच से। द एब्सेंस ऑफ एन escape route appears to be a violation of norms। तो एक escape route होता है टनल में, ठीक है, जो एब्सेंस था वहाँ पे था नहीं। टू बी अ वायोलेशन ऑफ नॉर्म्स, तो ये एक नॉर्म्स जो रूल होता है उसका यहाँ पे वायलेट किया, मतलब उल्लंघना किया, जो नियम का पालन नहीं किया गया, कि रूट एक नहीं था, escape रूट नहीं था बचने का समय। जब इमरजेंसी आता है तो एक escape रूट होता है जहाँ से वर्कर्स और सभी निकल सकते हैं, तो यहाँ पे था ही नहीं। तो एक तरीके से एक बड़ा सा जोखिम, रिस्क यहाँ पे सभी ने लिया। It seems that during the excavation the required tunnel profile was not maintained, and tunnel profile was not maintained। बचाव के समय में टनल का जो प्रोफाइल था, जो ज़रूरी था, वो भी सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया था, ऐसा दिख रहा है। इट सीम्स, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नाउ these all things are from the editor's point of view। okay, this necessitated profiling, profiling which may have been done without regard for the rock type in the accident zone। so ऐसा necessitated मतलब ऐसा कदम उठाना चाहिए, रिफॉर्मिंग which may have been done without regard for the rock type in the accident zone। तो एक्सीडेंट जो जोन होता है वहाँ पे जो जरूरत है, हैव बीन डन विदाउट रिगार्ड फॉर द रॉक टाइप, ठीक है। रॉक टाइप का यहाँ पे बात की, अगर माउंटेन्स में अगर हो तो यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो रॉक टाइप माउंटेन्स में, तो जो ज़रूरत है, दिस नेसेसिटेड रिफॉर्मिंग, तो ऐसा ज़रूरत है रिफॉर्म करने का, ठीक है। कुछ ऐसा स्केप टनल, पीछे से अगर हम लोग लिंक करें तो स्केप टनल और टनल का जो प्रोफाइल है वो ज़रूरी है नेसेसिट करने का, रिफॉर्म करने का, अभी नहीं है तो आगे बनाने का,
क्यों? क्योंकि जब रॉक टाइप का अगर एक्सीडेंट होगा, अगर माउंटेन्स में अगर रॉक्स अगर होते, अभी तो आयरन था तो उसको ब्रेक किया गया, बट अगर रॉक होगा तो उसको ब्रेक करने में, कट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा माउंटेन्स में। तो इसलिए ज़रूरी है एक रिफॉर्म लाने का, नेसेसिट करने का। ओके, स्टार्ट करने का। नाउ देयर आर कॉर्नर्स ओवर whether this tunnel, which will connect the Gangotri and Yamunotri valleys as part of the Char Dham project once it is complete, will be safe for all vehicles given the fragile geology of the Himalayas। तो fragile मतलब जो ब्रेकेबल है, कमज़ोर है, इजीली डैमेज हो सकता है। तो हिमालयस का ये जो फ्रेजाइल वैलीज होता है उसमें गंगोत्री यानी यमुनोत्री चारधाम प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वंस इट इज़ कंप्लीट। एक बार ये जो कंप्लीट हो जाएगा, इट विल कनेक्ट ये टनल एंड विल इट बी सेफ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जा रहा है, विल इट बी सेफ फॉर ऑल द व्हीकल्स, सारे व्हीकल्स के लिए क्या ये सेफ होगा? देयर आर कॉर्नर्स ओवर वेदर दिस टनल। अब ये जो टनल जो है सिलकेरा टनल चारधाम प्रोजेक्ट के लिए जब स्टार्ट होगा तो क्या व्हीकल्स के लिए क्या ये सेफ होगा जब यहाँ से व्हीकल्स गुजरेंगे? नाउ द चारधाम प्रोजेक्ट मस्ट बी इन्वायरमेंटली रिव्यूड टू minimize damage arising from the slide, floods and earthquake। तो चारधाम प्रोजेक्ट जब एक बार स्टार्ट किया जाएगा तो इन्वायरमेंटली रिव्यू, अच्छी तरीके से इन्वायरमेंट को देखते हुए उसको रिव्यू किया जाएगा, करना चाहिए। ओके, दैट डैमेज जो लैंडस्लाइड होता है, ज़मीन खिसक जाता है या फिर फ्लड आ जाता है या फिर अर्थक्वेक, तो ये सब को देखते हुए इसको रिव्यू करना चाहिए। ओके, चारधाम प्रोजेक्ट मस्ट बी इन्वायरमेंटली रिव्यूड। तो इन्वायरमेंट से जो क्षति पहुंचती है, ओके, रिस्क रहता है, उसको यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए। नाउ बट first lapses in tunnel execution as indeed in the EPC contract must be dug out as it were। ठीक है, जैसे पहले था टनल्स में अभी जो कमी है लैप्सेस है, बट फर्स्ट जो लैप्सेस है टनल एक्सिक्यूशन में ठीक है, बचाव का जो एस्केप रूट होता है वो अभी नहीं है, और ये सब का जो अभी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में ठीक है जो पहले था उसको अब फिर से वैसा करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दिस वाज फ्रॉम द एडिटोरियल। और ये जो टनल सिलकेरा टनल में जो हुआ है उससे लर्निंग हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटर ने बताने की कोशिश की है दैट एस्केप रूट जरूरी है एक टनल में। ओके, सपोज यहाँ पे स्टक हो भी जाता है, सो देयर नीड टू बी अनदर वे फ्रॉम वेयर द वर्कर्स can come out। okay, and other thing also need to be taken care। okay, for the safety of the workers as well as for the local vehicles or other people। okay, so I hope this is clear। this is just event editorial, we can say that। okay, now we can take a leave from here and I'll meet you in next session. Till then, keep smiling and stay healthy।